নমস্কার। অ্যাকচুয়ালি বর্তমানে সারা বিশ্ব জুড়ে যে বিশ্ব বিপদের মুখে আমরা পড়েছি, তার জন্য সামান্য নিজেদের প্রতিরোধ করবার জন্য একটা ভ্যাকসিনের প্রয়োজন হয়। সারা ভারতবর্ষ তথা সারা বিশ্বে সকলেই ভাবছেন ভ্যাকসিনটা কিভাবে নেওয়া যায়। আমাদের যাদের পয়সা আছে আমরা বিভিন্ন হসপিটালে যাই, বিভিন্ন জায়গায় যাই ভ্যাকসিন নিয়ে, আবার কোথাও ভ্যাকসিনে কালোবাজারেও চলছে, আপনারা সকলেই জানেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত ভারত সরকার সহ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদাসীনতার একটা প্রতিচ্ছবি প্রতিটা মুহূর্তে আমাদের চোখে পড়ে। কোনো প্রতিবন্ধীকে ভ্যাকসিন দিতে দেখা যায়নি। কয়েকবার আন্দোলন হয়েছে, অ্যাপ্লিকেশন লেখা হয়েছে, ওই অ্যাপ্লিকেশনগুলো ডাস্টবিনের ডান দিকের কোনায় হয়তো থেকে গেছে, আগামী দিনেও থাকবে। তো সমাজের বেশ কিছু সোসাইটি রয়েছে, বেশ কিছু সমাজসেবী সংগঠন রয়েছে, যারা বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীদের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করে তাদের নিজেদের সামর্থ্য মতো। বেশ কিছুদিন আগেও স্বর্ণিম ফাউন্ডেশনের কর্ণধার তিনি দাঁড়িয়েছিলেন ধর্মতলাতে, কিছু প্রতিবন্ধী মানুষকে ভ্যাকসিন দিয়েছেন। আজকেও বেশ কিছু মানুষকে মারোয়ারি রিলিফ সোসাইটি হসপিটাল এবং স্বর্ণিম ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে আজকে আমরা অনেকেই যারা প্রতিবন্ধী ভাই বোন ভ্যাকসিনটা পেলাম। আমি সমস্ত প্রতিবন্ধী ভাই বোনদের কাছে পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, সেকেন্ড ডোজটার জন্য এদের জন্য কোথাও না দৌড়তে হয়, আপনারা যাতে এদেরকে দেন, আমরা যাতে এই সুযোগটা পাই। আসলে একটা কথাই বলতে পারি, আমরাও কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। যদি আপনাদের সহযোগিতা থাকে আমরাও কিন্তু সমাজের একটা স্তম্ভ বলে মনে করি। নমস্কার। আমরা খবরের কাগজের মাধ্যমে কি কি করতে পারি সেটা নিয়ে তো আমি বহু বছর ধরে বলেছি। আমার সামনে যিনি রয়েছেন তিনি এবার আপনাদেরকে বলবেন যে তিনি কি করেছেন। ওনার থেকে ওনার নামটা আগে জানতে চাইব, তারপরে সে অ্যাচিভমেন্টের কথা উনি নিজে বলবেন। স্যার জি, আপনার নাম पहले बता दीजिए। मेरा नाम रवि विष्णु चौमाल है। मैं आई डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम करता हूँ नेत्रदान महादान के नाम से, और काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। और जो सर ने कहा कि वेस्टेज पेपर, रद्दी कागज़, तो उससे किसकी दुनिया भी बन सकती है, किसी का आशियाना भी बन सकता है, किसी की लाइफ सुधर सकती है, पर डेडिकेशन होना पड़ेगा। मैं एक पुरानी बात बताना चाहता हूँ, चाहे हो गए 5-6 साल से ऊपर, जोका में एक स्वामीनारायण का मंदिर बना हुआ है। वो मंदिर गुजराती समाज ने बनाया था। उसके अंदर गुजराती समाज के कई एक यंग बच्चियों ने मिलकर 2 साल 3 साल 4 साल घर घर जाकर उन्होंने पेपर कलेक्ट किया। मेरे ख्याल से कम 1 करोड़ के आसपास का फ़ंड कलेक्शन हुआ। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ उन लोग को जिन्होंने अपने घर से पेपर दिया। उससे भी धन्यवाद उनको जो बच्चे ने डेडिकेशन करते हुए दे, ऑल द एजुकेटेड पीपल। कोई MBA किया हुआ है, कोई CA किया हुआ है। एवरी संडे को बच्चियाँ मिलकर, हम लोग मिलकर पेपर जुगाड़ करते थे, उसको फ्रेश करते थे, बाद में सेल करके वो मंदिर खड़ा हुआ है। और मैं ये चाहता हूँ अब आपके आसपास के घर में कोई भी अगर स्क्रैप है तो उसको वेस्टेज मत कीजिए, संभाल के रखिए। और इस चैनल के माध्यम से एक आपको नंबर दिया जाएगा, या आप जैन साहब का से कॉन्टैक्ट कीजिए। उसको हम लोग महीना में 1 दिन 10 दिन में 1 दिन आते हैं, हम लोग उसको रिसीव करेंगे, आपको थैंक्स बोलें। आपके आसपास जो भी नीडी पीपल, आप उसको रिकग्नाइज कीजिए कि उस आदमी को कुछ हेल्प चाहिए। आपके घर के वेस्टेज से हम उसको हेल्प करेंगे। हमारा काम इतना ही है, लेना और देना। स्वामी विवेकानंद ने एक चीज़ कहा था कि अगर स्कूल तक कोई बच्चा नहीं जाता है तो स्कूल इस बच्चे तक जाएगी। कोई आदमी हॉस्पिटल नहीं आता है तो हॉस्पिटल उसके बाद जाएगी। हम लोग थोड़ी विश्वास करते हैं कि ये समाज बहुत बड़ा है। बाकी आपकी मर्जी, किसी को आगे बढ़ाइए और बढ़ाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। एक सेकेंड, খুব রেয়ার অকেশনে হয় যে আমি ক্যামেরা ধরি বা ক্যামেরার সামনে আসি। খবর কাগজ দিয়ে একটা মন্দিরের মূর্তি 90 লাখ টাকার করা যায়। উনি যেটা বললেন হসপিটাল আপনার কাছে আসবে। আজকে বিকলাঙ্গ মানুষেরা যারা এখানে এসেছেন তারা শুধু ফিজিক্যালি বিকলাঙ্গ, মেন্টালি নয়, তারা আমাদের থেকে অনেক বেশি এডুকেটেড।
তাই আমাদের নিউজ পেপার ব্যাংক তাদের বাড়িতে যদি আমরা খুলি, সেখানকার মানুষেরা সেটা যদি জমা করে, তাহলে সেইখানে বসে দাদারা স্বর্ণিম ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাদের পাশে আর্থিকভাবে দাঁড়াবেন, সেখানকার মেয়েদের বিয়েতেও তারা সাহায্য করতে পারবেন এবং একটি চ্যানেল ভাবনামুখ যে জন্য জন্ম নিয়েছিল ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম, সেটা আমরা দেখাবো এবং তারা সেখান থেকে মোবাইল থেকে ভিডিও হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, অজিতজির কাছে আসবেন, দাদার কাছে আসবে, তারা আমাকে সেটা ফরওয়ার্ড করবেন, তারপর সেটা নিউজে যাবে। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ নিচের লেভেল থেকে একটা দেশ গড়বে, এটাই স্বপ্ন ছিল। ধন্যবাদ। और एक मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, आप लोग बोलते हैं ना हमने उसको डोनेट किया, दान किया, ये बड़ा हटा दीजिए। कोई भी आदमी आपके डोनेट का भूखा नहीं बोले, हमने उसको गिफ्ट किया कि उसकी एक रिस्पेक्ट है। हर आदमी अपनी ज़िंदगी लेके चलता है, हर आदमी अपनी रिस्पेक्ट के लायक है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर कहा कि दिव्यांग, वो हैंडीकैप नहीं है सर, दिव्यांग है, उनके पास 6 सेंस आपसे और हमारे से बेसी है, बहुत ज़्यादा है। आज कोई ब्लाइंड आदमी है, वो किसी भी कलर की परिभाषा नहीं जानता है। आज कोई ब्लाइंड बच्चा है, चुपचाप बैठा, कुछ नहीं। आपके बच्चे अगर 2 साल में आपके घर में है कोरोना के चक्कर में, आप क्या बोलते हो, साला कब स्कूल खुलेगा, कब बच्चे जाएंगे, कब स्कूल खुलेगा, कब बच्चे जाएंगे। बच्चा दिन भर यूट्यूब में बैठा था, पिक्चर देखते रहता है, आप खुद टेंशन में आते हो। पर उस ब्लाइंड को देखिए, बेचारा चुपचाप बैठा, उसको मैंने काला पीला कोई भेदभाव नहीं है, एवं वो टीवी भी नहीं देख सकता है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, कभी ये मत कि हमने डोनेशन दिया, हमने गिफ्ट किया, ये मेरी रिक्वेस्ट है, उपहार दिया। बाकी तो मर्जी आपकी है, समाज आपका, समय आपका, पैसा आपका, सदुपयोग कैसे करना, इससे ऑल डिपेंडेंट यू। थैंक यू। आई थैंक हिम वेरी मच। थैंक यू सर। जो प्रश्न आपको करना है, हमारे इस लॉकडाउन में हॉस्पिटल का जो सर्विसेज है, एक तो हॉस्पिटल में मिला, आपको क्या लगता है कि ये हर सोसाइटी में, हर पाड़ा में किसी तरीके से पहुंच जाना चाहिए ताकि आदमी अवेयर हो व्हाट इज़ कोरोना एंड फ्यूचर में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये मेन बात ये है कि जो अभी कोरोना की प्रॉब्लम है, ख़त्म नहीं हुई है और ख़त्म होने की ऐसी बात है भविष्य में, तो मास्क ज़रूर पहने विदाउट फेल, और डिफरेंस ज़रूर रखें। 2 गज बोलते हैं, 1 गज रखो, कुछ डिफरेंस ज़रूर रखना पड़ेगा। और जहाँ तक उसको वहाँ वैक्सीनेशन कराएं। सोसाइटी ने अभी तक में मिनिमम 20,000 आदमियों का वैक्सीन कर दिया, 20,000 से ज़्यादा ही हुए हैं। और मोस्टली इसमें हमारे कैंप से हुए हैं, विदाउट एनी कॉस्ट हुए हैं, लोगों को लेना देना नहीं पड़ा। कुछ वो भी हैं, कुछ लोगों ने पैसे भी दिए हैं, तो मोस्टली हम लोगों ने सेवा के रूप में इस काम को लिया है। और हमारी इच्छा है कि हमारे पास 3,000 डोज अभी हैं, 3,000 डोज भी हम लोगों को निःशुल्क दें, ये हमारी सोसाइटी की इच्छा है। सोसाइटी ने कोरोना काल में बहुत काम किया है। अभी सेकंड वेव जो आई थी हमारे यहाँ 1500 पेशेंट हो गए थे, मतलब आगे कोई कम है कोई ज़्यादा है, तो उनको सबको बहुत उचित रेट में, वो सामान्य रेट में हम लोगों ने उसको ट्रीटमेंट किया। ठीक भी हुए हैं, कुछ डेथ भी हुई हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है, डेथ भी हुई है। बाकी हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की, दिन रात हमारे सिस्टर ने, हमारे मैनेजरों ने बहुत मेहनत की। कोरोना में हमने इतना अच्छा काम किया है, चार्ज बहुत कम। बाकी तो जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके जहाँ बिल 10 लाख का था, हमारा बिल 1 लाख का होता था। 1/10 में हम लोगों ने काम किया और जान बचाई लोगों की, बड़ा काम किया। गोविंद जी, जो क्वेश्चन आपसे और एक करना था, गांव में डॉक्टर्स लोग शायद पहुँचे नहीं है उस तरीके से, एंड आरएमपी डॉक्टर्स ने सर्विस दिया है, तो अभी जो वक्त चल रहा है, तो ऐसा कोई मोबाइल सर्विस गांव में पहुंच सके जो और भी अवेयरनेस हो सके, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ये काम करीब सरकार ही कर सकती है तरक्की से। तो हम लोग का जो अस्पताल है वो ये काम करने में शायद असमर्थ होगी, क्योंकि उतनी बड़ी एम्बुलेंस चाहिए, उतने डॉक्टर चाहिए, उतने सिस्टर चाहिए। फिर हमारे यहाँ का सिस्टम, हम तो खाली कोरोना का काम नहीं, हम जमीन काम भी करते हैं। अभी मेरे यहाँ पर 80 पेशेंट भर्ती हैं, 80 पेशेंट तो कोरोना के नहीं है, 80 को देखना है और सारे काम करने हैं। हम लोग गांव वाला काम अपने जिम्मे ले लें, वो नहीं हो। एक काम हम गांव में कर सकते हैं, हम कैंप लगा गांव में 300 का, 400 का, 500 गांव में कैंप लगा सकते हैं। हम बिल्कुल लगा देंगे, हमारी टीम जाएगी, हमारे मंदिर जाएंगे, हमारे सिस्टर जाएंगी, सब जाएंगे, और हम लोग वहाँ पर फ्री 300 का, 400 का एक दिन लगा के शाम को वापस आ जाएंगे। किसी गांव में हम 200 किलोमीटर तक आप भेज दीजिए, हमको खड़गपुर तक भेज दीजिए, हम जाके करके आ जाए। लेकिन हम लोग वैन वगैरह वो गाँव रेगुलर नहीं करते।
हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम में हम जो बोलना चाहते हैं, आरएमपी डॉक्टर्स जो गांव में बैठकर अभी काम कर रहे हैं, वो अगर वर्मा जी के साथ कांटेक्ट करें और गोविंद जी के साथ कांटेक्ट करें तो उनका हेल्प लेकर ये लोग गांव तक पहुंच सकते हैं। अभी ये एक टाइम है कि हम यूनाइटेड होकर कुछ करें। हमारा पूरा सहयोग मिलेगा। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर जी। अजीत जी, आपको 2-3 क्वेश्चन करना था। तो हमारे जो प्रश्नटा আপনাকে যে दिव्यांग तो शरीर से होते हैं, वो तो भगवान ने भेजा है। मेंटली तो वो लोग दिव्यांग होते नहीं हैं, फिट होते हैं, हमारे से ज़्यादा फिट हैं। तो इनके घर में क्या हम लोग न्यूज़पेपर बैंक खोल सकते हैं ताकि वो जहाँ पर हैं वहाँ के 2-3 हज़ार आदमी उनके घर में आकर स्वर्णिम फाउंडेशन के आगे माने हम आपको प्रपोजल दे रहे हैं, वो लोग न्यूज़पेपर, खबर कागज़, खाता बुक्स जमा करके उधर ही फंडिंग करके उनके पास खड़े हो सके। क्योंकि गवर्नमेंट कहाँ तक देख पाएगा ये तो आप अच्छा बोल पाएंगे, वो एक बार फिर से बोल दीजिए कि हम लोग उनके लिए एक सिस्टम बना सकते हैं क्या? देखिए, शुरू से मेरा एक ऐसा मानना है कि समाज में 2 पोल है, 2 एक्सट्रीम कहा जाए। कुछ लोग खा के मर रहे हैं, कुछ लोग नहीं खा के मर रहे हैं। अगर इस गैप को अगर हम लोग मिटाना चाहें कि अगर किसी के पास कुछ भी सरप्लस है, माइट भी न्यूज़पेपर हो, एक्स्ट्रा वेस्ट बुक हैं, कपड़े हैं, बहुत सा ऐसा रिसोर्स है जो शायद उनके उतने ज़रूरत का नहीं है, उसको वो सर्कुलेट करके, उसको मोबिलाइज करके अगर वो चीज़ को चैनलाइज करें तो उस फंड को या उस सरप्लस को हम लोग और बेटर तरीके से नीडी जगह तक पहुंचा सकते हैं। स्वर्णिम फाउंडेशन क्या ये इनिशिएटिव ले पाएगा? ऑब्वियसली लेना चाहिए, क्योंकि हमारी काफ़ी बड़ी टीम है और हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं कि सिर्फ दिव्यांग ही नहीं, जो भी जनरल लोग हैं जिनके पास अभाव है और जिनके पास सरप्लस है, उसको मीटअप करें हम लोग। यही हमारा प्रयास रहा है और रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। आपने 3 जन को सुना, गोविंद जी को, अजीत जी को, चौमाल जी को। डेवलपमेंट जर्नलिज्म एक्चुअली होता क्या है? हम लोग जो सबसे ज़्यादा देख सकते हैं, भगवान ने हमको आँख देकर भेजा है, कान देकर भेजा है, मुंह देकर भेजा है, दिमाग देकर भेजा है। सब कुछ अगर मिला ले तो एक इंटेलिजेंट देश क्यों नहीं बन सकता, वो अमीर क्यों नहीं बन सकता? ये क्वेश्चन हम गवर्नमेंट के किसी को नहीं करते हैं। इसका कारण ये भी है कि गवर्नमेंट सॉल्यूशन कितना दे पाएगा? 5 साल के अंदर एक साधारण आदमी जो पार्टी ऑफिस में बैठकर पोस्टर लगाता था, आर्गुमेंट करता था, वो आदमी अगर देश चलाए तो कितना ही चेंज ला सकता है। ये 130 करोड़ का देश है, 140 करोड़ का देश है। तो हमको हरदम ये लगता है कि सबसे नीचे लेवल से अगर इसको ऑर्गेनाइज किया जाए। अजीत जी के बारे में 2 चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है। आज स्वर्णिम फाउंडेशन के जो कर्णधार हैं, जो आज तक सभी ने मेरा भावनाओं का वीडियो देखा है, अच्छा हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ, जरूर से बोला है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल एंड से, जो हमने डिटेल में देखा, बहुत अच्छा लगा कि आप बारीकियों को उठाकर ला रहे हैं। इसी को डेवलपमेंट जर्नलिज्म बोलते हैं। जब एक जर्नलिस्ट कुछ ऐसा क्वेश्चन करेगा जिससे समाज थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। आज जितने भी दिव्यांग हैं हमारे देश में, उनके घर में अगर उन लोग 7 दिन का कमेटी बनाए और उधर के 2-3 हज़ार आदमी को 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है, उनको अगर ऑर्गेनाइज करना शुरू करें तो एक फंडिंग होगा, जो फंडिंग सेल्फ फंडिंग होगा। अगर ये सेल्फ फंडिंग सोचिए 1 लाख का होता है महीने में, तो 20% आप लोग जमा के रखिए ताकि जितना सारा बैंक, न्यूज़पेपर बैंक खुले इंडिया में, उससे हम लोग फैक्ट्री खोल सकें। 20% महीना के लिए रखिए, तो इसका मतलब 1 लाख में 20,000 महीना दीजिए। एक विकलांगों को क्यों जाना पड़ेगा नौकरी के लिए कहीं और? चौमल जी जो बोल रहे थे, जो विवेकानंद जी ने बोला है, हॉस्पिटल आपके पास आएगा। अगर कोई नहीं आ सकता है हॉस्पिटल, तो वो हॉस्पिटल आज क्यों नहीं पहुंच सकता है हमारे पास? हमने गोविंद जी को यही सवाल किया कि गांव में हम लोग क्यों नहीं पहुंच सकते, तो उन्होंने क्लियर कहा 200 किलोमीटर तक आप लोग अगर चाहें तो मारवाड़ी हॉस्पिटल को बुला सकते हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू, आप नंबर देख ही सक रहे हैं, टू कॉल अस। हम लोग चाहते हैं एक परमानेंट कैंप, एक हॉस्पिटल आपके गांव में पहुंचे और जितने भी आरएमपी डॉक्टर्स हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने ताकि इनको सर्टिफिकेट मिल सके इस हॉस्पिटल से, दैट दे हैव बिकम डॉक्टर्स। देन ओनली इंडिया कैन बी सर्व फ्रॉम बेस। आज जितने भी डॉक्टर्स गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर उन लोग गांव वालों को मेंबर बनाना शुरू करें तो हम लोग को हर गांव में वो क्लिनिक मिल जाएगा जो क्लिनिक आरएमपी डॉक्टर्स विथ प्रैक्टिस फ्रॉम मारवाड़ी हॉस्पिटल कैन बी रन। आज हम सबको धन्यवाद इसलिए देना चाहेंगे कि एटलीस्ट डेवलपमेंट जर्नलिज्म वो जगह पहुंच रहा है जहां पर एक सांबादिक बोलने के बाद शायद
ये काम हो सकता है। अजीत जी वो आदमी हैं जो साल में 300 प्रोग्राम करने का टारगेट लिए हैं। इसका मतलब ये भी है कि देश पार्लियामेंट से सिर्फ नहीं चलता है, देश में ये काम जो लोग कर रहे हैं, ट्रस्ट के माध्यम से हो, एनजीओ के माध्यम से हो, ह्यूमन राइट के माध्यम से हो या इंडिविजुअली हो, वो लोग ही आज देश को चला रहे हैं। ये रिपोर्टिंग कोई नहीं करना चाहता है। कल का सबसे बड़ा न्यूज शायद अफगानिस्तान था। ये न्यूज क्यों नहीं होता है कि आदमी आदमी को बचा रहा है। इतिहास का इसीलिए लिखा जाएगा कि आदमी ने आदमी को मारा, इसने उसको लूटा, उसने उसका धर्षण किया, न कि ये लिखा जाएगा देश के 80 करोड़ आदमी कैसे जाग रहे थे, कैसे श्रमिक जाग रहे थे भावनामुख के साथ, कैसे एनजीओज एंड ह्यूमन राइट जाग रहे थे भावनामुख के साथ, कैसे आप लोग भी जाग रहे थे। ये सिर्फ आइडिया ही मेरा है। आइडिया का तो कुछ वो दाम नहीं होता जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाए। एडिसन ने लाइट तो कब आविष्कार किया था, अभी भी इंडिया में काफी जगह में लाइट नहीं पहुंचा है। तो इसलिए इंप्लीमेंटेशन को करने का नाम ही होगा जो आप अपने देश को कितना चाहते हैं। मर तो सभी सकते हैं, मरने के बाद क्या देश में कोई चेंज आया? शहीद बहुत जन हुए हमारे देश के लिए, हमने क्या उनको वो ऑनर किया? हमने क्या उस फैमिली के पास खड़े हुए? आज जो जवान बॉर्डर में मर जाता है हमको बचाते बचाते, हम लोग क्या उस परिवार के पास में खड़े हो सकते हैं? उसका भी एक नियम है। भावनामुख 1100 खोलकर जरूर से देखिए कि आप अपने पाड़ा में बैठकर इस देश में कैसे चेंज ला सकते हैं। 542 people from parliament can never bring change. ये दिमाग में जरूर से रखिएगा। It is you who can bring change. I will like to thank Swarnim Foundation to given us this platform to speak on, जहाँ पर कोई मंच नहीं है, कोई ऑडियो भाड़ा करके हजारों रुपए का खर्चा नहीं है। सिर्फ एक मोबाइल है, आप है, हम हैं और हमारा देश आपके लिए अपेक्षा कर रहा है। धन्यवाद।